اور اب سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں سلام ہو۔ ہالیلویا ہالیلویا۔ یہ جلدی سے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیے گا۔ کچھ لیٹ ہے، ہم 8:30 ہو چکے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب اور 27ویں آیت سے لے کر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 9واں باب اور 27ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں مکتوب ہے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف ہے، زوردار تعریف۔ تھینک یو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کے آج کے دن کے لیے۔ خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ ہم جتنے یہاں پر ہیں خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، اب سب جانتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے، جب ہم ساری چیزیں چھوڑ کر خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے ساتھ سنگت میں ہوتے ہیں۔ ہم نے برکت پائی ہے حمد و ثنا کے وسیلے سے، اور اب ہم خدا کے کلام کے حصے میں ہیں۔ اس کو ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا، کہاں سے؟ اس کے اوپر یسوع مسیح نے کچھ معجزے کیے ہیں۔ ایک عورت کو شفا دی ہے، اور ایک سردار کی بیٹی کو جو مر چکی تھی یسوع نے زندہ کیا۔ وہاں سے یسوع مسیح جو ہے، لکھا ہم نے پڑھا ہے کہ آگے بڑھے۔ وہ معجزات کر کے جب یسوع مسیح آگے بڑھا تو ہم نے پڑھا ہے کہ 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ گھر میں پہنچا، یعنی جب وہ گھر میں پہنچا تو گھر میں یہ 2 اندھے جو ہیں گھر میں اس کے پیچھے گئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور پھر یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع جب گھر میں پہنچا ہے تو یہ اندھے وہاں پر اس کے پیچھے گئے۔ اور ابن داؤد یسوع مسیح کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے یسوع مسیح کو ابن داؤد؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں، کیونکہ سارے یہودی اس بات کو جانتے تھے، شاید یہودیوں کے علاوہ بھی لوگ جانتے تھے کہ جب موت مسیح ہوگا وہ داؤد کی اصل اور نسل میں سے ہوگا۔ اس لیے یسوع مسیح کو ابن داؤد کہا جاتا ہے۔ ابن داؤد، داؤد کی نسل میں سے، کیونکہ مریم کا اور یوسف کا تعلق جو تھا اسی گھرانے کے ساتھ، اس لیے یسوع مسیح کے اور بھی بہت سارے القابات، آسمان سے اتری ہوئی روٹی، بہت سارے القاب ہیں یسوع۔ اور یسوع مسیح کو ابن داؤد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی نسل میں سے تھا۔ اور یہ اندھے جو ہیں یسوع مسیح کو پکارتے ہیں کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح
जब घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पीछे आए हैं, और गालिबन ये कहा जाता है कि शायद यीशु घर आ चुका था, आराम करने वाला था शायद। और एक तरह से जब कोई आराम कर रहा होता है तो कोई इस तरह घर में आ जाए तो डिस्टर्ब करने वाली बात भी होती है। लेकिन यीशु मसीह का रवैया और अखलाक जो है वो बड़ा खूबसूरत है। जब वो यीशु मसीह के पीछे आए हैं तो हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा है कि क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? और यहां पर उन्होंने पढ़ा है कि उन्होंने उससे कहा हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद। यीशु इकरार करवा रहा है। जब वो यीशु के पीछे आए हैं तो यीशु ने पूछा है क्या तुम ये ईमान रखते हो, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? और जवाब मेरा है कि हाँ है खुदावंद। वो ईमान रखते हैं कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। और कहा कि तब उसने उनकी आंखें छू कर ये कहा कि तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आमीन। तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और लिखा है कि और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा खबरदार इस बात को कोई ना जाने। लेकिन नीचे हमने आखिरी आयत पढ़ा है कि यीशु मसीह के मना करने के बावजूद भी उन्होंने जाकर इस बात को फैलाया है, इस बात का चर्चा किया है कि यीशु ने उन्हें शिफा दी। और गालिबन ये कफरनहूम के इलाके की बात है। और इस आयत पर भी बहुत सारी राय है। जब यीशु ने मना किया, बहुत सारे लोग कफरनहूम शहर उन शहरों में से एक था जो यीशु पर ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े काम देख। और ये कहा जाता है कि शायद यीशु ने ऐसा कहकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यीशु अपनी शोहरत नहीं चाहता, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसके वसीले से, मोर्चे के वसीले से खुदा की बड़ाई हो। आमीन। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, वो चाहता है कि उन कामों के वसीले से जो वो करता है खुदा को इज्जत मिले, खुदा का नाम जो है वो सराहा जाए। और हमने यहां पर पढ़ा है कि यीशु ने उन्हें पूछा। और अक्सर हम ईमान पर बात करते हैं, इत्तेकाद पर बात करते हैं, भरोसे पर बात करते हैं, तवक्कुल पर बात करते हैं, यकीन पर बात करते हैं। और ये सारे लफ्ज जो मैं कह रहा हूं ये एक ही बात है। और अगर भरोसा ना हो, अगर ईमान ना हो, अगर इत्तेकाद ना हो तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यीशु उनके ईमान को परख रहा है। जरूरी है कि पहले इकरार करवाया जाए। और यीशु ने उन दोनों से ये इकरार करवाया कि क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम इत्तेकाद रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? क्योंकि यीशु जानता है कि जो कोई इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। इसलिए उसने जरूरी समझा कि मैं इनसे इकरार करवाऊं। उसे मालूम है कि जिस किसी का ईमान इस बात पर है कि यीशु उसके लिए ये काम कर सकता है, उसे ये मालूम है कि अगर कोई उस पर इत्तेकाद रखता है कि यीशु मसीह उसके लिए ये मौजज़ा कर सकता है, वो जानता है कि मौजज़े से पहले, शिफा से पहले, बहाली से पहले या शिफा को हासिल करने से पहले जरूरी है कि शिफा पाने वाले का इत्तेकाद हो, मौजज़ा हासिल करने वाले का ईमान जो है वो मजबूत हो, वो इस बात पर
यकीन रखता हो कि हाँ यीशु मेरे लिए कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस में एक और जगह पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। जो कोई इस बात पर इत्काद रखता है कि यीशु मेरे लिए ये कर सकता है उसके लिए वैसा हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एबिलिटी है, यीशु मसीह के अंदर शिफा देने की सलाहियत है, यीशु मसीह के अंदर मौजज़ा करने का इख्तियार और कुदरत है। और इसीलिए यीशु ने पूछा है कि क्या तुम इत्काद रखते हो? जब उन्होंने कहा है कि हाँ खुदावंद हम इत्काद रखते हैं, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने आंखों को छू लिया है, और जब उसने छू लिया है तो उसके छूने से उन दोनों की आंखों के अंदर शिफा उतर गई है, मौजज़ा हो चुका है, और वो दोनों बीना हो गए हैं। उनकी आंखें जो है वो यीशु के छूने से खुल गई है। लेकिन जरूरी है, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जरूरी है कि इस बात पर हमारा यकीन हो कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए ये कर सकता है। तो यकीनन यीशु कहता है कि जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो यकीन रखता है कि मेरे खुदा के अंदर ये कुव्वत है, जो इस बात पर यकीन रखता है कि मेरे खुदा के अंदर ये सलाहियत और एबिलिटी है, यीशु ये दावा करता है, ये कहता है, यकीन दहानी कराता है कि हाँ उसके लिए हो सकता है। और इनके लिए ऐसा हुआ जब इन्होंने इकरार किया है कि हाँ खुदावंद हम इत्काद रखते हैं कि तू कर सकता है, तो यीशु ने किया है, यीशु ने इनके लिए किया है। और इत्काद के मुतालिक, भरोसे और ईमान के मुतालिक खुदा का कलाम भरा हुआ है। खुदा का कलाम भरपूर है बातों से। खुदा के कलाम में जगह जगह हमें मालूम होता है कि हाँ ईमान और इत्काद के सबब से बड़ी बड़ी चीजें रूनुमा होती है। पुख्ता यकीन और इत्काद की बदौलत खुदा अजायबात करता है। वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि शिफा हासिल करने वाले का ईमान है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार हाँ बहुत सारी चीजों में खुदा की मर्जी कुछ और होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग पहले भी और आज बहुत सारे लोग शिफा के लिए रेगुलर दुआएं कर रहे होते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन कई मसले सॉल्व नहीं होते, कई मसले हल नहीं होते। हाँ शायद खुदा की तरफ से एक वक्त मुकर्रर है, यह वजह हो सकती है। जैसे अब 38 वर्ष से जो बीमार था उसके मुतालिक पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक और जगह पर यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। वो शख्स जिसके बेटे के अंदर बदरू थी, उन्होंने भी कई कोशिशें की थी लेकिन शिफा नहीं हुई। यीशु ने उस शख्स के साथ भी इत्काद की बात की, पहले भी और आज भी। सुने, शिफा और बहाली और मोर्चे के लिए हमारा इत्काद, हमारा ईमान जो है वो मरकजी हैसियत रखता है। और आज भी अगर मैं बीमार हूं, आज भी अगर मैं कमजोर हूं, आज भी अगर मैं बेइत्कादी का शिकार हूं, तो मुझे यीशु मसीह के सामने इकरार करने की जरूरत है कि मैं इत्काद रखता हूं, मैं इत्काद रखती हूं कि तू मेरी बीमारी को दूर कर सकता है। मुझे इकरार करने की जरूरत है कि मैं इत्काद रखता हूं, रखती हूं कि तू मुझे कुव्वत दे सकता है। हाँ मेरे अंदर शायद बेइत्कादी है, और अगर मैं इत्काद रखता हूं, अगर मैं उसके सामने झुकता हूं, अगर मैं इकरार करता हूं, अगर मैं मानता हूं, अगर मैं एक्सेप्ट
बीमारी नहीं रहेगी, कमजोरी जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन हम सीख रहे हैं कि कई बार हम इत्काद नहीं रखते, कई बार हम यीशु के सामने इकरार नहीं करते, इसलिए शायद हम बहाल नहीं होते। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि अगर इत्काद है, मुकम्मल भरोसा है, तो शिफा है। अगर यकीन जो है कामिल है, पूरे तौर पर भरोसा है, तो यीशु भी फिर गारंटी देता है कि शिफा जारी होगी। वो गारंटी देता है कि मौजज़ा जरूर होगा, जैसे यहां पर हुआ। उससे पूछा, क्या तुम इत्काद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? और जवाब मिला है कि हाँ है खुदावंद, हम इत्काद रखते हैं। दोनों दो का जिक्र पड़ा, बयान बिल्कुल सेम है दोनों के। दोनों ने कहा कि हाँ है खुदावंद, एक ने नहीं कहा। दोनों का यकीन है, दोनों का इत्काद है, दोनों का यकीन जो है वो पुख्ता है। और फिर यीशु ने कहा कि लिखा, यीशु ने आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आमीन। जब उन्होंने इकरार किया कि हाँ खुदावंद तू कर सकता है, तो फिर यीशु मसीह ने छू कर कहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे इत्काद के मुआफिक हो जाए। और लिखा कि उनकी आंखें खुल गई हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं। और अब सब जानते हैं, मैं बार बार इस आयत को का जिक्र करता रहता हूं कि लिखा है खुदा के कलाम कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। एक सा है, यानी जैसे वो पहले अजायबात करता था वो आज भी कर रहा है। और उसके नाम के बारे में लिखा है तो उसका नाम सब नामों में से आला है। इवन कि आज हम देखते और सुनते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि यीशु के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ, उसका छूना तो एक बात है, उसका छूना तो एक बात है। इवन कि उसके नाम को लेने ही से शिफाएं जारी होती है, उसके नाम को लेने ही से मौजज़ात होते हैं, उसके नाम के सबब से अजायबात हो जाते हैं, उसके नाम के सबब से बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसी कुव्वत, ऐसी अट्रैक्शन और ऐसी पावर उस नाम के अंदर है कि उसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। और फिर जब वो किसी को छू ले तो फिर बात और भी बड़ी है। आमीन। उसका छूना तो फिर कमाल है। और आज भी वो छूता है लोगों को, वो छूता है जिनको उसने छुआ है, उनका एक्सपीरियंस है। और वो जानते हैं कि जब यीशु छूता है तो किस तरह महसूस होता है। अगर वो बीमार को छूता है तो बीमारी खत्म होती है। अगर वो बदरू गिरफ्ता को हाथ लगाता है तो बदरूएं जो है वो छोड़ती है। अगर वो छू लेता है तो चेंजेस जो है वो वाकई होते हैं। अगर वो ब्रेन को छूता है तो ब्रेन जो है वो तब्दील होता है। अगर वो दिल को छूता है तो दिल के ख्यालात जो हैं वो बदलते हैं। अगर वो कमजोर को छू लेता है तो कमजोर जो है वो जोरावर होता है। और ये सारी सफात खुदा की है। मेरे साथ ज़बूर 140 निकालें। यहां पर मैं आंखें खुलने की बात की। ज़बूर 140 जल्दी से एक आयत पढ़े। ज़बूर 140 उसकी 8वीं आयत। ज़बूर 140 उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। आमीन।
हमने वहां आंखें खोलने के मोर्चे की बात, शिफा की बात की है। और मैं कह रहा हूं कि ये सारी सफात खुदा के अंदर है। और ज़बूर 140 में लिखा हुआ 8वीं आयत मैंने पढ़ा है, ऊपर वाला हिस्सा, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। आमीन। खुदा अंधों की आंखें खोलता है। और नीचे लिखा है खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। लेकिन फिलहाल ऊपर वाला हिस्सा, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, यानी खुदा के अंदर ये सारी चीजें करने की साहियत है। और फिर अगर आप वापिस आए मत्ती की इंजील 11वां बाब देखें, 11वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है कि अंधे देखते और लंगड़े चलते। निकाला है आपने 11वां बाब, मुकद्दस मत्ती की इंजील का 11वां बाब 5वीं आयत में पढ़ रहा हूं कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते, हाँ, कोड़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। फिलहाल कि अंधे देखते, ये किसकी बात है? हाँ, वहां पर हमने पढ़ा कि खुदावंद या खुदा अंधों की आंखें खोलता है। यहां पर जो हमारा मरकजी वाला यीशु ने 2 अंधों को शिफा दी। और आगे 11वें बाब में हमने पढ़ा है कि अंधे देखते। ये किसने कहा था? किसने कहा था और कब कहा था? यीशु ने कहा था। और ये उस वक्त कहा था जब यूहन्ना इस्तबागी कैद में था, वो मरने वाला था। और उसने अपने लोगों को, शागिर्दों को यीशु के पास भेजा था। जो सुने ध्यान से, सुन रहे आप, समझ रहे? 11वें बाब वाला हवाला बता। जब वो कैद था तो उसने यीशु के पास अपने शागिर्दों को भेजा था कि जाओ उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखे। और तब यीशु ने कहा, यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ही, ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा कि जाकर उसे बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, वगैरह वगैरह। और ये बात किसने कही थी यीशु के बारे में? ये सारा 61वें बाब चैप्टर नंबर 61 में ये बातें लिखी हैं। यीशु कोड का, यीशु ने नहीं कहा कि मैं ही। हालांकि आप जानते हैं कि यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, ऐसा ही है। यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया और यूहन्ना ने इकरार किया कि मैं छोटा हूं, तेरे जूतों का तस्मा भी नहीं खोल सकता, तू जोरावर है, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की हाजत है, जरूरत है। लेकिन यहां पर मुकद्दस मत्ती की इंजील में वो कह रहा है कि पूछ क्या कि यीशु तू ही मसीह मौत या कोई और है? क्योंकि वो कैद था, पैनिक हो चुका था, खौफजदा हो चुका था। लेकिन यीशु ने कहा, यीशु ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं, यीशु ने कहा कि जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मोजज़ात हो रहे। और ऐसा यीशु ने इसलिए कहा था, यीशु ने वहां से हवाला दिया है यशायाह की किताब में, क्योंकि यीशु जानता था कि जब तुम यूहन्ना को जाकर ये बातें बताओगे तो वो जान जाएगा कि मैं हूं, क्योंकि ये मेरे ही बारे में लिखा हो। क्योंकि यशायाह ने ये बातें जो कहीं यीशु मसीह के बारे में लिखी, पेशीन गोई। खुदा के अंदर ये कुव्वत है कि वो अंधी आंखों को खोल सके। उसके बेटे के अंदर ये कुव्वत है कि वो अंधी आंखों को खोल सके। बल्कि खुदा के अंदर तमाम तरह के इख्तियार हैं, वो सब कुछ कर सकता है और उसका बेटा भी सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और यहां पर हमने पढ़ा है यीशु कह रहा है खबरदार बाहर किसी को ना बता। लेकिन हमने पढ़ा है कि उन्होंने फिर भी जाकर उसे फैलाया, इस मोर्चे के बारे में बताया। और मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये बात भी सच है कि यीशु नहीं चाहता कि मेरी बड़ाई हो। और भी कुछ जगहों पर यीशु मसीह ने 1-2 जगहों पर मना किया लोगों। यीशु बाप की बड़ाई चाहता है, लेकिन जो हम जानते और सीखते हैं वो ये है कि यीशु सब कुछ कर सकता है। हाँ, वो अंधों की आंखों को खोल सकता है, लेकिन इत्काद का होना जरूरी है।
बता रहा है कि अगर इत्काद है तो शिफा है, अगर इत्काद है तो मोर्जा है, और अगर इत्काद नहीं तो फिर शिफा भी नहीं है, मोर्जा भी नहीं है। लेकिन मुबारक है वो लोग जिनका इत्काद उस पर है, वो शिफाएं भी हासिल करते हैं, मोर्जों को भी हासिल करते हैं। उनके लिए यीशु कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आइए हम दुआ करें, आइए सब खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह से दुआ करें। हम दुआ करने में सुस्त हैं, हम सब दुआ करेंगे। खड़े होकर हम दुआ करना शुरू कर दें, कोई किसी को ना देखे। तकरीबन 5 मिनट तक हम दुआ करेंगे।